Morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. So, हमने जो स्टोरी पढ़ी थी हमारी स्टोरी में देयर वॉज अ मैन नेम गोपी. तो गोपी अपने बेटे के पास जाते हैं सिटी में बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज सन. और वो उसके पास जाके उससे मिलते हैं. तो जब वो मिलते हैं तो वो देखते हैं कि गोपी के बेटे अपना घर चेंज कर चुके हैं. तो ही टुक द एड्रेस फॉर हिज ऑफिस टू हिज नेबर्स एंड ही वेंट टू द ऑफिस. Receptionist called Gopi's son, and both the son and dad meet each other in son's cabin, and the son got very excited and his eyes were filled with tears. So let's continue the story. They had a simple conversation for a while, and then Gopi said to him, "Son, your mother wants to see you. Can you come home with me?" Son replied, "Sorry, Dad, can't come home now, as I have loads of work and it would be hard to manage if I leave." Gopi smiled and said, "It's okay. You may do your work. I will be leaving in evening for village." तो गोपी क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनकी मदर गोपी के बेटे को मिस कर रही हैं. गोपी की वाइफ अपने बेटे को मिस कर रही हैं, तो वो अपने मदर के पास थोड़े दिन के लिए गांव आए, विलेज आए. बट सन रिफ्यूज्ड. सन ने मना कर दिया. उन्होंने कहा, "फादर, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. एज ऑफ नाउ आई कांट कम टू द विलेज." तो गोपी ने वो स्माइल करा. उन्होंने कहा, "ठीक है, इट्स ओके, डोंट कम एंड आई हैव टू गो बाय इवनिंग टू द विलेज." The son said and requested his father to stay with him for some days. But Gopi refused, saying, "I didn't want to make you uncomfortable or be a burden to you while you are busy with your work. Hope if you have ever time, then come visit us, as your mom and I would be very happy to see you," said Gopi and left. तो सन को बुरा लगा कि भाई मेरे फादर शाम को ही चले जाएंगे. तो he said his father to live with him for some days. बट फादर रिफ्यूज्ड. फादर ने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि आपके पास तो बहुत काम है, तो मैं आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू. मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता. यू बेटर यू डू योर वर्क. और ऐसा कह के वो अपने गांव के लिए चले गए. लेकिन उन्होंने एक बात गोपी से कही, होप इफ यू गेट एवर टाइम, अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो प्लीज कम टू विजिट योर मदर. अपनी मदर को मिलने जरूर आना, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी. So he took leave from his office and went to his village to meet his parents. He was shocked to see that his parents were not there at home. अब जब गोपी चले गए तो कुछ टाइम बाद जब उनके बेटे को टाइम मिला तो ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस. अपने ऑफिस से छुट्टी लेके वो अपने गांव गए. लेकिन गांव जाके उन्होंने देखा कि हिज पेरेंट्स वर नॉट एट देयर होम. तो ही गॉट वेरी वरिड. वेयर आर दे? When he inquired about it, he came to know that his parents had left that place and are now living at another place. He got address from neighbor and rushed there. तो उसको भी ये पता चला कि their parents are not living at their house, they are living somewhere else. वो कहीं और रह रहे हैं. तो he inquired this thing about about neighbors, and when he got the address, he rushed to that place where his parents were living. The son noticed that the place seemed like a graveyard. उन्होंने क्या देखा कि जो ये जगह है ये तो एक ग्रेवयार्ड की जैसी है. ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे ग्रेव्स को रखा जाता है, ग्रेव कब्रिस्तान जो हम बोलते हैं, तो उस टाइप की एक जगह थी. His eyes were filled with tears and in fear. He slowly walked towards that place. उसकी आंखों में पानी आ गया. उसने कहा कि इतनी गंदी कंडीशन में मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं. तो he slowly walked towards that place. From a far distance, he saw a hand waving at him. जब उसने दूर से देखा तो एक उसको हाथ दिखाई दिया जो उसकी तरफ हिला रहा था. When he looked closely, he noticed that it was his father. He ran and hugged him. जब उसने पास जाके देखा कि ये हाथ कौन हिला रहा है तो उसको पता चला it was his father. He ran fast and hugged his father. Gopi said, "What's wrong? Why are you crying?" Son didn't say anything and kept his head down. तो गोपी ने अपने बेटे से कहा, "बेटा आप रो क्यों रहे हो? आप तो हमसे मिलने आए हो." लेकिन सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था. He kept his head down and didn't say anything.
द सन विस्पर्ड, बट यू कुड हैव टोल्ड मी आई एम योर सन। तो बेटे ने कहा कि आप मुझे बता सकते थे कि आपको प्रॉब्लम है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, मैं आपका बेटा हूं। गोपी replied, son, I didn't want to cause you any trouble, so I kept quiet. All I want is your happiness. तो गोपी ने कहा कि मैं आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, I want only your happiness. The son apologized his father, he asked for his forgiveness. तो ऐसे अब सन को अपनी गलती का रियलाइज हुई कि उसने मतलब मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया मेरे लिए, मुझे इतना पढ़ाया और मैं उनसे मिलने भी नहीं आ सकता, उनको देखने भी नहीं आ सकता। तो ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस। So the moral story is give time to your parents when they need you. Don't leave them behind as they are the true reason for your success. आप जो भी हो अभी अपने पेरेंट्स की वजह से हो, वो इतनी मेहनत इतना हार्ड वर्क करते हैं, योर मदर योर फादर योर पेरेंट्स डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू कैन नॉट इमेजिन। सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। कभी शाम को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके साथ बातें भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा टीवी और गेम्स में लगे रहो, पढ़ाई में लगे रहो, कभी कभी पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। यू कैन डू लिटिल हाउस होल्ड कोर्स टू हेल्प योर मदर आउट, राइट? So there's an activity about you. Think about yourself and complete the sentence by adding the words in the boxes. जैसे आपको लिखना है I am kind, I am caring, I am helpful, जो भी आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं या फिर जो भी आपकी अच्छी बातें हैं वो आपको लिखनी है, एंड I am not, और जो आप नहीं हो वो भी लिखना है। जैसे I am not rude, I am not selfish, I am not careless, right?